اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی في محكم كتابه الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات مولیہ نے حیدر کرار عزاداران دختر سید الشہداء ماتمداران شہزادی سکینہ میرے برادر عزیز بھائی قیصر حسین چغتائی صاحب کے زیر اہتمام اس مقدس آستانے میں یہ خصوصی مجلس عزا اور شب ماتم جس سے اس وقت خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ تا حد نظر بہت خوبصورت اور جذبے ایمانی سے لبریز عزاداران حسین کا وہ مجمع موجود ہے جس کی پیشین گوئی رسول نے کی تھی اور تمنا بطول نے کی تھی. آپ وہ ہیں کہ جس کی بشارت رسول نے دی تھی اور تمنا بطول نے کی تھی. بطول اور رسول کی بشارتوں اور تمناؤں کے درمیان رہنے والی قوم کو شیعہ کہتے ہیں. اس سے بڑا ہے کوئی تعارف؟ نہ بوائیں سے نہیں، پوری بہت بڑا مجمع ہے، پوری طاقت سے.
ذرا سا اہم ترین جملہ ہے یہ آغاز میں آپ کا تعارف دنیا کے سامنے پیش ہم کر رہے ہیں مقام فخر پر کہ ہماری بشارت رسول نے دی تھی، ہماری تمنا بطول نے کی ہے۔ تو جس کی بشارت رسول دے وہ بدعت نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ کیا سن رہے ہیں سارے محترم؟ سلامت رہیں آپ، تھوڑا سا بیدار ہو، تھوڑا سا جاگے، تھوڑا سا بلند ہو۔ جس کی بشارت رسول دے وہ بدعت نہیں ہوتا، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ایمان ہو۔ بڑی توجہ، میرے سارے مسلمان بھائی بڑے ٹھنڈے دل سے اس آواز کو میری سنیں کہ جس کی بشارت رسول دے نہ وہ قوم بدعت ہوتی ہے، نہ وہ مکتب فکر بدعت ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول نام ہے اس بشیر و نذیر کا کہ جس نے صرف ہماری ہی بشارت نہیں دی، اللہ کی توحید کی بھی بشارت دی۔ اس انداز کو سنیں، اب ذرا سا یہ چین یہ پوری کڑیاں ملاتے چلے جائیں بڑے سکون کے ساتھ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارا خاتم النبیین رسول وہ ہے کہ جس نے صرف ہماری بشارت نہیں دی، توحید کی بشارت بھی اسی رسول نے دی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو توحید کی بشارت رسول نے دی، نبوت کی بشارت رسول نے دی، آدم کی صفت کی بشارت رسول نے دی، ابراہیم کی خلت کی بشارت رسول نے دی، اسماعیل کی اطاعت کی بشارت رسول نے دی، موسیٰ کی ہیبت کی بشارت رسول نے دی، عیسیٰ کی مسیحائی کی بشارت رسول نے دی، جنت کی بشارت رسول نے دی، کوثر کی بشارت رسول نے دی، سلسبیل کی بشارت رسول نے دی، تسلیم کی بشارت رسول نے دی، قرآن کی بشارت رسول نے دی، اسلام کی بشارت رسول نے دی، ایمان کی بشارت رسول نے دی، اصول دین کی بشارت رسول نے دی، فروع دین کی بشارت رسول نے دی، نماز کی بشارت رسول نے دی، قیام کی بشارت رسول نے دی، قعود کی بشارت رسول نے دی، سجود کی بشارت رسول نے دی، دعا کی بشارت رسول نے دی، کعبے کی بشارت رسول نے دی، قبر کی بشارت رسول نے دی، حشر کی بشارت رسول نے دی، نشر کی بشارت رسول نے دی، عدل کی بشارت رسول نے دی، میدان حشر کی بشارت رسول نے دی، طول صراط کی بشارت رسول نے دی، منبر کی بشارت رسول نے دی، مومن کی بشارت رسول نے دی، مومن کی بشارت رسول نے دی، مومنین کی بشارت رسول نے دی، متقین کی بشارت رسول نے دی، متقین کی بشارت رسول نے دی، ایمان کی بشارت رسول نے دی، اللہ کی بشارت رسول نے دی، نبوت کی بشارت رسول نے دی، اور غدیر کے منبر سے علی کی مولا کی جانی مدد کہنے والوں کو یہ اسلامی کیوں مل کر دونوں آزان کر کے یہ اسلامی عقیدے کی پوری عمارت رسول کی بشارت پر ٹھہری ہوئی ہے، مولوی کے فتوے پہ نہیں ہے۔
पर ले जाएं। ऐसा है मोहतरम, दुरूद में और लानत में यही फर्क है कि दुरूद भी साहिबान दुरूद को ढूंढ कर पहुंच जाता है और लानत भी उनके मुस्तहक तक बगैर भेजे हुए पहुंच जाता है। इस जुमले पर आप जरा सा गौर फरमा लें कि कायनात से ये जुमला बिल्कुल ज़हन में रखे। मेरी पूरी तकरीर इसी पर बेस कर रही है आज की, कि पूरी कायनात से इस्लाम के अकीदे की इमारत रसूल की बशारत पर ठहरी हुई है, मौलवी की हिकायत पर नहीं ठहरी हुई, रावी की रिवायत पर नहीं ठहरी हुई, तारीख के मौर्रिख पर नहीं ठहरी हुई, फतवा फरोश मौलवियों के फतवे पर नहीं ठहरी हुई, हो जालिमों के मानने वाले आदिल पर नहीं ठहरी हुई। पता नहीं आपने जुमला सुना है या नहीं। जालिमों के मानने वाले नाम नेहाद आदिल पर नहीं ठहरी हुई, दुश्मनी आले मोहम्मद नमाजी पर नहीं ठहरी हुई, उस दौर के या इस दौर के काजी पर नहीं। सलामत रखे, मिलकर सलावत भेजिए बाबा देवरन बाबा का पूरे काम। ये कायनात से इस्लाम की पूरी इमारत। फिर समझे इसी जुमले को, चाहे सारी आज गुजरे, अगर ये जुमला मैं समझा सका अपने सारे मुसलमान भाइयों को, तो मेरे भाई कैसर की ये मेहनत और आपका ये आना और ये शब मातम, ये सब वसूल हो जाएगा। इसलिए कि हमारी मजलिसों से मोहब्बतें तकसीम होती हैं, अदावतें नहीं। हमारी मजलिसों से इल्म तकसीम होता है, जहालतें नहीं। इसलिए कि हम बाबे इल्म के भिखारी हैं, अबू जहल के पुजारी नहीं है। समझ जो है ना, चाहे वो तमाम ये ज़हन में रहे। जुमले परेशान है। हम बाबे इल्म के भिखारी हैं, किसी अबू जहल के पुजारी नहीं हैं। हम अरबों की तरह इमरजेंसी में कलमा पढ़ने वालों की औलादे नहीं हैं। यार मैं एक एक जुमले में तारीख दे रहा हूं, एक एक तारीख एक एक जुमले में है। हम अरबों की तरह इमरजेंसी में कलमा पढ़ने वालों की औलादे नहीं है। हमने कलमा नहीं पढ़ा है रसूल का, हमने गवाही दी है नबूवत की। तवज्जो है ना, गवाही दी है। अल्लाह सलामत रखे जाली मदद कहने वालों को। बहुत शुक्रगुजार आपकी खूबसूरत मयारी इल्मी तवज्जो पर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मयार पर हमने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा है, हमने गवाही दी है नबूवत की। कलमा पढ़ना और होता है, गवाही देना और होता है। सुनेंगे जुमला, दोनों का फर्क बताऊं एक जुमले में, मगर पूरी तारीख का सफर खुद ही जहन में तय करना। मैं जुमला बता के आगे बढ़ जाऊंगा। कलमा पढ़ने वाला और होता है, नबूवत की गवाही देने वाला और होता है। कलमा पढ़ने वाला सिर्फ कलमा पढ़ता है, नबूवत की हिफाजत नहीं करता। और याद रखो, एक जुमला फिर और अर्ज कर दूं कि हर कलमा पढ़ने वाले को न शाहिद कहा जाएगा न शहीद कहा जाएगा। ये अरबी ऐसी जबान है जिसमें शाहिद के माने गवाह के भी है, शहीद के माने गवाह के भी है, शहीद के माना कुर्बान होने वाले के भी है, शहीद के माना पैरोकार के भी है। एक एक लफ्ज के कई कई माना अरबी में होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 5 वक्त की अजानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला शहादत भी दे रहा हो। तवज्जो करें, मैं जुमला दे रहा हूं, आप गौर ही नहीं कर रहे। ये जरा सा इल्मी मसला है, इस पर
पर गौर फरमा ले। जरूरी नहीं है कि 5 वक्त की अजानों में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला शहादत भी दे रहा हो अल्लाह और रसूल की, वो शहादत नहीं दे रहा है, अजान दे रहा है। नहीं गौर फरमाया, नहीं गौर करें जुमले पर। मैं इसका नतीजा दूंगा, आप आसमानों पर जाएंगे। जो बात मैंने कही है वो अजान दे रहा है, शहादत देना और बात है, शहादत देना और बात है। आप मुझसे नौजवान दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, सवाल करें ना कि फिर शाहिद किसे कहते हैं। मेरी जान कुरान की आवाज में शाहिद उसे कहते हैं जो अपनी शहादत से, जो अपनी शहादत पर शहीद तो हो जाए, मैदान न छोड़े। ये है शहीद। ऐसा जरा सा तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, बड़ी अहम बात है। एक मतलब सलवात भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और दोनों के लिए मैं कुरान की आयतें पेश करता हूँ, पूरी तवज्जो। शरीयत में, और सलामत रखे, शरीयत में शाहिद उसे कहते हैं जो अपनी गवाही से कभी दस्तबरदार न हो, अपनी गवाही से विड्रॉ न हो, ना मुआफिक हालात में घबराए नहीं, परेशान न हो, अल्लाह को आयत न नाजिल करनी पड़े कि चुप हो जा। तो है ना क्या अली, या अली, गौर करे, गौर करे। इशारा है, इशारा समझते जाए। यही खूबसूरती होती है तकरीर की के सामने पूरी तवज्जो से आप सलात भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा, मैं आपको एक झलक दिखाऊं कलमा पढ़ने वाले की और शाहिद की, फिर आयत पेश करूंगा ताकि आयत समझ में आ जाए। एक ही वक्त में कलमा पढ़ने वाले और शाहिद की झलक देखें। जो शाहिद है ना, जो शाहिद है नबूवत का, ये भी हम कुरान से आगे चल के साबित करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो शाहिद है ना नबूवत का, अकेला है, तन्हा है, रात है, तारीकी है, सन्नाटा है, 40 कबीले हैं, बरहना तलवारें हैं, तवक्कुल का तकिया है, यकीन की चादर है, इत्मीनान का सोना है, अबू तालिब का शरीफ खून है। शाहिद देखिए यार, बहुत बड़ी बहुत बड़ा मजमा है। पूरी ताकत से अगर आप नारा लगाए ना दोस्तों, पूरी ताकत, एक आवाज होकर की बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी तवज्जोहात पर, आपकी मोहब्बतों पर। शाहिद और गवाह, ये फर्क देखें। शाहिद की शान ये है कि रात है, तारीकी है, सन्नाटा है, अकेला है, 40 कबीले हैं, कत्ल नबी का मंसूबा है, नबी का बिस्तर है, तवक्कुल का तकिया है, कनात की चादर है, यकीन का सोना है। यार मैं तो बहुत खूबसूरत जुमले कह रहा हूँ, आपकी खूबसूरत समाज की नजर कर रहा हूँ। यकीन का सोना है, चारों तरफ से दुश्मन है, कत्ल का बिस्तर है और इत्मीनान से सो रहा है, इसलिए कि शाहिद है नबूवत का। और दूसरी तरफ ना, बहुत तवज्जो, और ये जो शाहिद है ना, इसके चारों तरफ तलवारें हैं, रात है, तारीकी है, सन्नाटा है, कातिल है, वैशी है, दरिंदे हैं, लुटेरे हैं, कत्ल नबी का मंसूबा है, और सोने वाला भी अली बन के नहीं सो रहा है, वो बन के सो रहा है जिसको कत्ल करना है। नबी बन के सो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको सलामत रखे। सोने वाला जो सो रहा है ना मेरी जान, वो नबी बन के सो रहा है।
अली बन के नहीं, नबी बन, इसलिए कि अली बन के सोए तो मकसद हिजरत बहुत हो जाए। अगर किसी करवट से अली की ये साबित हो जाए कि ये अली है तो सारे कातिल नबी का ताक़ुब कर लेंगे, पूरी नबूवत खत्म हो जाएगी। आज सो भी रहा है तो नबी की तरह। यार मुझे ताज्जुब तो इसी बात पर होता है कि अबू तालिब का वो बेटा अली जो सोया भी नबी की तरह, उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं नबी जैसा, और जो मौलवी जागता भी नहीं नबी की तरह, मरता भी नहीं। दोनों हाथ बैठ करके इतनी बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की, पाकीज़ा अज़मत है। सोया भी तो नबी बनकर। मैं कुर्बान ना हो जाऊं इस अली के, जो सोया तो नबी कहलाया, जागा तो खुदा कहलाया। यार रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत से फायदा उठाकर जो नस्ल बुरीदा और बदनस्ला होता है वो आईना देखे बगैर कह देता है नबी हम जैसा, नबी हम जैसा। अरे अगर किसी माँ ने बेटा पैदा किया है तो मैं टंडो आदम में चैलेंज कर रहा हूँ, अगर किसी माँ ने बेटा पैदा किया है तो कयामत तक कोई कह के तो दिखाए कि अली हम जैसा। तो जो है या अली कहे कोई अली हम जैसा, तो जो है ना तो कहे कोई। चैलेंज है, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं। मेरे नबी रहमत और रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत से नाजायज फायदा उठाकर, तवज्जो है ना, जो बदनस्ला और बेवलद आदमी है, बेबल्दियत का आदमी है, वो आईना देके बगैर कह देता है कि नबी हम जैसा। अगर किसी माँ ने बेटा पैदा किया है तो कयामत तक की मोहलत दे रहा हूं मैं, ऐलान करके जा रहा हूं, उठे कोई और कहे, एक मर्तबा कहे कि अली मुझ जैसा। जरा कहे तो सही, अगर सेवन में सोए हुए कलंदर का तमाचा ना आए, कह दे कहे ना कोई अली मुझ जैसा। सेवन में सोया हुआ कलंदर तमाचा मारेगा वहीं से, तू मेरे अली जैसा कैसे हो गया। इसलिए कि सरगरोहे तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम, मैं सबका सरदार तो मैं हूँ जो शेरे खुदा की गली का कुत्ता हूँ। तो पहले कुत्तों का तो जवाब ला, अली का मुकाबला करने वाले अली के कुत्तों, या अली तारीकी है, सन्नाटा है, अकेला है, तलवारें हैं, बिस्तर है, अबू तालिब का शरीफ खून है, यकीन का सोना है, इत्मीनान की चादर है, सो भी रहा है तो नबी की तरह। और आज अली ऐसे आलम में नबी की
तलवारों भरे बिस्तर पे सो रहा है कि आज बज़ाहिर, जुमला ज़ाय न जाए, आज बज़ाहिर जोग्राफियाई एतबार से नबी अली के करीब भी नहीं है। समझो समझो, शाहिद और कलमा पढ़ने वाले का फर्क बता रहा हूं, समझो इसी जुमले में तो है। आज जुग्राफियाई एतबार से नबी फासले पर भी है, अली अकेला है, सन्नाटा है, तारीकी है, तलवारें हैं, दुश्मन है, कत्ल का मंसूबा है। शाहिद इत्मीनान से सो रहा है, हालांकि नबी फासले पर है, शाहिद मक्के में है। और जिसने कलमा पढ़ा था वो छुपा हुआ भी है, खामोश भी है, तलवारें भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, मोहम्मद भी पास है, फिर भी बेचैनी है, परेशानी है, शोर है। गौर करो बाबा, गौर करो खुदा के लिए। नबी भी पास है, नबी भी पास है, किसी को नजर भी नहीं आ रहे, उसके बाद भी बेचैनी है, परेशानी है। आयत नाजिल हो रही है, आयत वहां भी आई, आयत यहाँ भी आई, आयत वहां भी आई, आयत यहाँ भी आई। वहां कहा परेशान मत हो, लाता सन, जहाँ कहा वमिनन नास में जचरी नफ्सहु तगा मर्ज़ातिल्लाह। और लोगों में एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है, अल्लाह की रज़ा खरीदता है। ये है शाहिद। अब बात वाज़ेह हुई कलमा पढ़ने वाले की और शाहिद की। शाहिद हमारा सलामत रखे या अली भाई। शाहिद उसे कहते हैं शरीयत की जबान में, कुरान की जबान में, शाहिद वो है जो अपनी गवाही पर शहीद हो जाए। फिर सोचो जरा सा, ये कुरानी मरहला है, इस पर जरा तवज्जो करेंगे आप 2-4 मिनट के लिए, ताकि नतीजा शाहिद और शहीद के दरमियान वाज़ेह फर्क सामने आए कुरान की रोशनी में। शाहिद और होता है, कलमा पढ़ने वाला और होता है। अगर कलमा ही पढ़ाने के लिए पैगंबर इस्लाम आए थे तो 40 बरस तक खामोश ना रहते, 40 बरस पहले कलमा पढ़ाना शुरू कर देते। लेकिन 40 बरस तक खामोश इसलिए रहे कि कलमा पढ़ने वाले तो बहुत मौजूद थे, शाहिद नहीं आया था। तवज्जो है ना जानो या अली, या अली, या अली। तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे। शाहिद नहीं आए थे, कलमा पढ़ने वाले तो मौजूद थे सारे, शाहिद नहीं आया था। इंतजार करते रहे कि रसूल अल्लाह का शाहिद अल्लाह के घर से आ जाए। आपने गौर ही नहीं किया जुमले पर। मेरी जान याद रखो, यही तो मसला है। नबी है, नबी रहमत, उनका वास्ता पड़ गया अबू जहल उम्मत से। क्या जुमला मैंने कहा, बगैर सोचे हुए फिल्मती जुमला कहा है, ये मैं सोच के नहीं आया था। और आपको आप इसकी वजाहत करूंगा। मुझे रसूल अल्लाह का वास्ता पड़ गया अबू जहल उम्मत से। रसूल अल्लाह का वास्ता पड़ गया अबू जहल किस्म की उम्मत से। अल्हम्दुलिल्लाह अली का वास्ता नहीं पड़ा अबू जहल उम्मत से, अली का वास्ता पड़ा है कंबर से, फूजर से, सलमान से। नारा हैदरी। भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। रसूल अल्लाह जो रसूल रहमत है, मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान इस रसूल अल्लाह पर। मैं कैसे मान लूं भाई, आप मुझसे कैसे मनवाएंगे जो मेरे अली का भी मौला हो? मैं कैसे मान लूंगा कि वो तुम जैसा है, जिसे मेरा अली भी अपना मौला कहे? हाँ,
तवज्जो है ना, रसूल को तो मेरे अली ने भी अपना मौला कहा है। तवज्जो है ना, आपने गौर ही नहीं किया। सारी कायनात में ये अबू तालिब के शरीफ खून का ऐलान है, जो मोहम्मद मुस्तफा की बेबंद लगी जूतियां गांठते हुए अली फख्र करके कह रहा है, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, खबरदार मैं मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों में से गुलाम हूँ। नबी की नालैन गांठ रहे हैं अली। तवज्जो, तो ये तो सारे मुसलमानों का अकीदा है ना कि जब रसूल मेराज पर गए, मेराज पर गए, मेराज पर गए, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जब रसूल मेराज पर गए तो नालैन उतार कर नहीं गए थे, बल्कि बकौल अल्लामा नसीर इस्तिहादी के जहाँ जिब्रील के पर जल रहे थे वहाँ मोहम्मद नालैन समेत चल रहे थे। तवज्जो है ना? अच्छा, मुझसे एक जुमला सुनोगे, गौर करोगे? अगर वादा करो तवज्जो का तो एक तारीखी जुमला कहूँ। ऐसा न मोहतरम, और वो सारे मुसलमान भाइयों के लिए है ये मेरा मोहब्बत का पैगाम। सुने और शान रिसालत को पहचाने, और वो ये है, ऐसा न मोहतरम सलावत भेजें। एहतराम अजान में आहिस्ता आहिस्ता सलावत भेजते रहे, जैसे अजान खत्म होगी, मगर बैठे सब रहेंगे, कोई अहम मसला है गुफ्तगू का। सलावत भेजें मोहम्मद वालों। माता ज़हमत भी हमारी, लंगर भी हमारा, पैसा भी हमारा, तकलीफ तुम्हें क्यों है? अली और वलीउल्लाह कहते हैं तो शहादत देते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा था कि ऐसी बातों का जवाब न दिया करो, बल्कि सवाल करने वाले और एतराज करने वाले से उल्टा सवाल किया करो कि क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, क्यों दुश्मनी? मिसाल सुनो आखिरी तक, सवाल किया करो कि क्यों मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। या अली, या अली, या अली, या अली। दोस्तों की फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी ना, चलते चलते जानो था। और जो है ना, मैं आपको सलामत, क्यों दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। और ये कौले रसूल है, कोई शायरी नहीं है। या अली, सरकार रिसालत माफ कर, शायर या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल बिलादा वला यबग़ुज़ुका इल्ला खबीसुल बिलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी। यार अली से प्यार करने को जी चाहता है। मुझे आप खुद बताएं, मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ता, कोई आयत नहीं पढ़ता, कोई हवाला नहीं देता, कोई तकरीर नहीं करता। सारे शिया सुन्नी भाइयों मजमे से मैं खुद आपसे रेफरेंडम करा रहा हूँ। आप इतनी देर से अली के नारे लगा रहे हैं, मुझे बताइए जब कभी भी आपने अली का नारा लगाया तो आपको अपने खून की शराफत पर यकीन आया या शक हुआ? अली 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 अरे मारा, अरे मारा, अरे मारा, अरे मारा, अरे मारा। हम चोरों के मानने वाले जो तो नहीं है, जो बंद कमरों में छुप छुप के नारे लगाए। हम मर्द मैदान के मानने वाले हैं, हर गली में, हर नगर में, हर चौक में, हर चौराहे पर या अली कहेंगे, इसलिए कि हमारे अली ने हमें किसी चौराहे बाजार पर किसी से शर्मिंदा नहीं किया। क्यों न लगाए भाई, क्यों न लगाए अली का नारा? वजह क्या है, आखिर सबब क्या है, क्यों न लगाए? हमें अली ने कहीं शर्मिंदा किया है?
है? हमारी मुसल्लह अफवाज का आला तरीन निशान निशान हैदर है। अब तो 4, 10, 20 साल से मतालबे शुरू हो गए। नहीं जी, वो निशान हैदर तो है ही। वो जिन्होंने बहरी बेड़ा बनाया था उनका भी एक निशान होना चाहिए, जिन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया था। तवज्जो तवज्जो, लगाओ उनका निशान भी लगाओ, बहरिया के लिए उनका निशान होना चाहिए। गौर ही नहीं कर रहे आप। बर्री अफवाज के लिए निशान हैदर है तो बहरिया जो फौज है हमारी, उसके लिए उनका निशान होना चाहिए, जिन्होंने इस्लाम में पहला बहरी बेड़ा बनाया, जिन्होंने इस्लाम में पहली मलूकियत कायम की, जो यजीद के भी बाप थे। गौर ही नहीं कर रहे। कितनी बात को वादे करूं। अज़ान मोहतरम आपके मुतालबे हो रहे हैं ना, तो हमें कोई एतराज नहीं है भाई। बिल्कुल 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 मुतालबे मान ले हुकूमत, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। बिल्कुल, जिन्होंने बहरी बेड़ा बनाया था उनके नाम का निशान भी हमारी बहरिया को दे दो। हम हुकूमत से कोई एतराज नहीं करेंगे, इनका मुतालबा मान लो, हम तायद करेंगे। मगर हमारी बहरिया के फौजी जवानों से पूछ लो कि उन्हें शर्म तो नहीं आएगी उसके नाम का निशान। जो उनके जमीन से पूछो। यकीनी के साथ जिंदा रहना हम जुर्म समझते हैं। हमारे यहाँ पे यकीनी के सजदे से बेहतर ये है कि यकीन के साथ सो जाओ। हमारे यहाँ शक की जिंदगी गुजारने से बेहतर ये है कि यकीन के साथ मर जाओ। हम शक की पैदावार नहीं है। यकीन की पाकीज़ा फसल भी है, असल भी है, नस्ल भी है। याली 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 बोला इन्हें जगा दो। यकीन की पाकीज़ा असल भी है, फसल भी है, नस्ल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने बैठे हैं ना, खुदा के लिए समझ लेना जुमला, ये जितने बैठे हैं सबकी तरफ से कुरान उठाकर कहने को तैयार हूँ। जितने यहाँ या अली कर रहे, शिया हो सुन्नी हो कोई भी हो, जितने बैठे सबकी तरफ से कुरान उठाकर कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से एक भी इन्ना शानिया का होवल अबतर की जद में नहीं आता। तवज्जो है किसी की? जियो तारीखी जवाब मेरे भाई के नारे का हैदरी। अरे मौला, अरे मौला, सारा मजमा मिलकर कहे अरे मौला, 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 अरे मौला। बलंतरीन सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जो जूतियां जो नालैन मोहम्मद की अली ने गांठ दी थी ना, बना दी थी, वो वहां तक पहुंची हैं जहां जिब्रील के पर जल रहे थे। मुझे मुसलमान बताएं फिक्र का मसला, शरीयत का मसला, कि ये नबी के पाँव में जो जूती है, नालैन है, ये जुज़्व रिसालत है, ये नबी का खून है। मामूली से भेड़ के ये ऊंट की खाल की बनी हुई एक जूती नबी के पैरों से मस हो गई। न नबी का खून है, न नबी का खानदान है, न नबी का हसब है, न नबी का नसब है, न एक मामूली से भेड़ की ऊंट की खाल की बनी हुई एक जूती है, मेरे मोहम्मद अरबी के पैरों से मस हो गई। वहां तक गई जहां तक नबी गया। तो वो जूती जो नबी के पैरों से मस हो, मामूली से ही ऊंट की खाल की बनी हुई जूती जो नबी के पैरों से मस हो जाए, हमें तो उस जूती की मेराज में शक नहीं है। मौलवी ये पूछ रहा है कि वहां अली कैसे पहुंच गया।
जो नालैन रसूल मामूली से ऊंट के खाल की बनी हुई है, वो नबी के कदमों से सिर मस है, तो वहां जा रही है जहां जिब्रील के पर जल रहे हैं। तो अली तो नबी का नफ्स भी है, जान भी है, भाई भी है, खानदान भी है, जुज़्व रिसालत भी है, इमाम भी है, वली भी है। तवज्जो है ना? जिसके हाथ की बनी हुई नालैन में राज पे जाती हो, ये अबू जहल की औलादें पूछती हैं वो अली कैसे गया? क्या रसूलुल्लाह माला आपको सलामत रखे। आपने भी हक अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस खूबसूरत और मेयारी और इल्मी अंदाज में आप ये अहम निकात की तरफ मुतवज्जे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जान मुहतरम, इस अम्र पर तवज्जो फिर फरमाएं कि अली को मेराज पर जाना था, इसलिए कि नबूवत एक लम्हे के लिए भी अपने शाहिद के बगैर नहीं। तवज्जो करो, तवज्जो करो। मैं ये आयतें तो आखिर में पढ़ूंगा, पहले समझ जाओ। बस सलावत भेजते फिर मोहम्मद आले मोहम्मद मिलकर। क्या करें भाई, मेरा पैगंबर इस्लाम चुके रहमतुल आलमीन है ना, उसका वास्ता पड़ गया अबू जहल किस्म की उम्मत से। और अरब इतने पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे थे अरब, इतने पढ़े लिखे थे कि जिनका सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल था। इसलिए कलमा पढ़ने के बाद भी जो लोग ज़हनी तौर पर अबू जहल से नाता नहीं तोड़ सके, जुमले को खुदा के लिए गौर करना, नाता नाता ताल्लुक, कलमा पढ़ने के बावजूद भी, शहादत नहीं, कलमा पढ़ने के बावजूद भी जो लोग ज़हनी तौर पर, मेंटली, आइडियोलॉजिकली, नजरियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर जो लोग अबू जहल से नाता नहीं तोड़ सके, वो आज तक भी अपने रसूल का कलमा पढ़कर उसे अनपढ़ कह रहे हैं। तो जो है ना, अबू जहल से ना यार, इससे बड़ी दलील क्या दी है? आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत में सलामत रखे। जो लोग ज़हनी तौर पर कलमा पढ़ने के बावजूद भी अबू जहल की फिक्र से नाता नहीं तोड़ सके, वो कलमा पढ़कर भी उसको अनपढ़ कह रहे हैं जिसका कलमा पढ़ रहे हैं। सोचो 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 सोचो। हालांकि अगर कुरान में जरा सा गौर कर लेते तो इस गुनाह का, इस अजाब का शिकार न होते। कुरान ने तो ऐलान किया, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने उम्मीयीन में वो रसूल भेजा जो उन पर आयात की तिलावत करता है। तो ये तिलावत अनपढ़ करता है या पढ़ा लिखा? तर्जुमा तो देखो ना, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। ये जो अनपढ़ रसूल है ना, ये इन पर आयात की तिलावत करता है। ये जो अनपढ़ रसूल है, ये इनके नापाक नफ्सों को पाक करता है। ये जो अनपढ़ रसूल है ना, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये जो अनपढ़ है वो इन्हें इल्म देता है। अंदाजा तो करें ना, अंदाजा तो करें ना, अंदाजा करें। क्यों भाई? नहीं साहब, हम
हमने उम्मी के माना लुगत में तलाश किए, डिक्शनरी में देखे, उम्मी के माना अनपढ़ है, बस और कोई माना नहीं है। अव्वल तो किस गधे ने तुमसे कहा था कि तुम कुरान को लुगत से समझो? बाबा हाँ समझो क्यों नहीं है इतना, क्यों कैसर मैंने जुमला इतना बड़ा कहा है खुदा को ना तो मेरी जान तुमसे किस गधे ने कहा था कि तुम कुरान को लुगत से समझो? किसने कहा था बताओ? कोई कौले पैगंबर, कोई आयत, कोई रिवायत कहाँ कहा है कि कुरान को लुगत से समझो? छोड़े जा रहा हूँ ये सवाल, याद रखना। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल के महीने में मैं हाला में मैंने वादा किया है हाजिर होऊंगा, वहाँ फिर मैं तफसील से करूंगा सीरत नबी पर, लेकिन ये जुमला जरा सा ज़हन में रहे। सही फिर हाला आऊंगा तो इधर भी आना पड़ेगा, हिंदू सभाएं तो नारा हैदरी, नबी होगा इंशाअल्लाह, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाला। तो बाबा मैं ये पूछता हूँ कि तुमसे किसने कहा था कि तुम ये कुरान को लुगत के जरिए समझो, डिक्शनरी के जरिए समझो? बाबा डिक्शनरी लिखने वाला, लुगत लिखने वाला कितना भी आलिम सही है तो बंदा ना। भाई कितना भी आलिम सही, कितना भी सेहतमंद इल्म रखने वाला सही है तो बंदा ना। तो जब आप कुरान की किसी आयत या किसी लफ्ज का तर्जुमा लुगत से करेंगे तो आयत और तर्जुमे में इतना फर्क तो होगा ना जितना अल्लाह और बंदे में है। तवज्जो है पेश करो मेरे पहले इमाम से लेकर मेरे आखिरी इमाम तक की एक रिवायत कि मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक किसी वारिस से कुरान ने कहा हो कि उम्मी के माना अनपढ़। तवज्जो है ना इधर मोहतरम? ये है जुमला, तवज्जो करो, हम दलील दे रहे हैं। मेरे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक एक रिवायत कोई पेश करे मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं कि मेरे किसी इमाम ने कहा हो कि हमारा रसूल 40 बरस के बाद नबी बना। पेश करो मेरे पहले इमाम अली से लेकर मेरे आखिरी इमाम तक एक रिवायत के मेरे किसी इमाम ने कहा हो कि मेरे नबी के सीने का ऑपरेशन किया गया, गलाजत निकाली गई, नूर भरा गया। यह कौल तो मैं अपने मौला का बता सकता हूँ 1000 किताबों में तुम्हारी, जहाँ मिंबर कूफा पर बैठकर मेरे मौला अली ने कहा अपने सीने की तरफ इशारा करके, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लौब रसूल अल्लाह, हाज़ा मसकनी रसूल अल्लाह ज़कन ज़का। ये मेरा सीना उलूम इलाही का गंजीना है, ये लौब पैगंबर चूसने का असर है। उसने मुझे ऐसा इल्म दिया जैसे पक्षी अपने बच्चे को बनाता है।
लाख नारा, पंचली नारा, एटम बम नारा, नारा एक नारा, सवा लाख नारा, पंचतनी नारा, एटम बम नारा, हम क्या करें यार, नाम अली का किसी हिंदू शायर ने कहा है, कोई मुनाफिक नहीं कह सकता ऐसा, काफिर कह सकता है ये बात, काफिर कह सकता है नाम अली का, नाम अली का, नाम अली का। नाम अली का, नाम अली का, बुलबुल चहक रहा है, नाम अली का। हाँ देखो, नाम अली का तायीद हो रही है, नाम अली का। हिंदू शायर कहता है, खुदा के लिए समझ लेना, ऐसा न मत हो, हम तो बहुत मशगूल कल्ब लोग हैं, हम बाबे इल्म के भिखारी हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, हम ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। नाम अली का, हिंदू कहता है नाम अली का इतना मीठा लगता है जिसके आगे शहद भी फीका लगता है। हाय 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 हाय, अली 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 अली। अब जिसे अली का नाम मीठा लगा है, वो पूरी मीठी आवाज सर्व करके अपनी तख्लीक की पाकीज़गी का ऐलान तंदो आदम की इस जलसे में करे, नारा हैदरी। आपसे अब तो जी जी अब भी किसी को शक है, हम अली की विलायत की गवाही नहीं दे रहे, शहादत दे रहे हैं। ये होती है शहादत। हम अली की गवाही से, अली और वलीउल्लाह से दस्तबरदार नहीं होते, इस शहादत पर कुर्बानी देते हैं, इस शहादत के हम शहीद हैं। हाँ 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 हाँ, तवज्जो करो मेरे जुम्मन, इस शहादत के सलावत भेजो मोहम्मद वाले, ये है वो गवाही। हम इस अली की विलायत की जो शहादत है ना, शहादत अली वलीउल्लाह, हम उसके शहीद हैं। और शहीद अपनी गवाही से दस्तबरदार नहीं हुआ करता, अपनी गवाही पर कुर्बान तो हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 बरस की हमारी तारीख उठाकर देखो, हम जब भी शहीद हुए हैं या अली की विलायत पर या हुसैन के मातम पर। और यह जुमला भी सुनते जाओ जब बात छिड़ गई है कि हम अली की विलायत की शहादत
अकीदा समझ के करते हैं हुसैन का मातम, इसलिए कि हमारे मौला ने कहा था नमाज शब में अपना दामन फैलाकर मौला कायनात ने कहा था, मेरे मालिक, मेरे पालने वाले, मेरे रब, अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न दोज़ख के खौफ से करता है। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तू इबादत के लायक है। तो फिर आज चंदो आदम के इस हजारों के मजमे से इरफान हैदराबादी को भी ये जुमला कहने दो अपने मौला की बारगाह में भीख मांगते हुए, या अली मैं तेरे कुर्बान, मौला आपने कहा था कि तू अल्लाह की इबादत नहीं करता न जन्नत के लालच में न दोज़ख के खौफ से, बल्कि इसलिए इबादत करता है कि अल्लाह इबादत के लायक है। तो हम अली वाले भी अली वलीउल्लाह का कलमा न जन्नत के लालच में पढ़ते हैं न दोज़ख के खौफ से पढ़ते हैं। अली 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 आगे खुदा जहन्नम में। न जन्नत के लालच में करते हैं न दोज़ख के खौफ से करते हैं। अली की विलायत का इकरार इसलिए करते हैं कि अली वली है। हम हुसैन का मातम और हुसैन की मजलिस और ये सारी रात सब मातम न जन्नत के लालच में यहाँ बैठे हैं न दोज़ख के खौफ से यहाँ बैठे हैं। हुसैन पर मातम इसलिए करते हैं कि हुसैन पर मातम करना वाजिब है। अटल वादा जन्नत का लालच नहीं है। मोहसिन नकवी शहीद कहकर गया है, अटल वादा है अपना है सखी अब्बास के परचम। हलफ उठाना चौथे मिसरे से जिसे इत्तफाक हो वो गाजी के अलम के नीचे बैठे हो, हलफ उठाना गाजी से वफा का। मोहसिन नकवी शहीद कहकर गया है, जबरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई लिहाज न करना। जो हलफ उठा सके वो चौथे मिसरे पर अली का नारा लगाए। अटल वादा है अपना एक सखी अब्बास के परचम। ये दुनिया क्या है, महशर को भी हम बेदार कर देंगे अगर शब्बीर के मातम पे पाबंदी हो जन्नत में, तो उस जन्नत में भी जाने से हम इनकार। मुकर्रम बुधायो बाकी को नारो भी तो मुकर्रम के बुधायो। वाला सलामत रखे यानी मदद करने वालों को अटल हम बेदार कर देंगे अगर शब्बीर के मातम पे पाबंदी हो जन्नत में। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, कुरान की कसम, काबे की कसम, अली की कसम, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, 1,24,000 पैगंबरों की कसम, फरिश्तों की कसम, जन्नत की कसम, कौसर की कसम, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, बलद अमीन की कसम, नून की कसम, कलम की कसम, यासीन की कसम, अशरे की 10 रातों की कसम, वल फज्र की कसम, वल असर की कसम, कुरान की एक आयत की कसम। अगर शब्बीर के मातम पे पाबंदी हो जन्नत में, तो उस जन्नत में भी जाने से हम इनकार।